Hi everyone, this is Harsh Basi and I welcome you all to my class. So, as we were doing the chapter that is chemical reaction and equation, so आज हम एक इस chapter में बहुत ही नया topic start करेंगे, that is the types of chemical reactions. Now, earlier हमने types of chemical reactions पढ़ा था. So, एक बार उन सारे types of chemical reactions को फटाफट से recall कर लेते हैं. So, anyone remember that हम लोगों ने last class में कौन सी reactions पढ़ी थी? Yes, exactly. The first reaction which we studied in the previous session was what? It was combination reaction. So, let me write here combination reaction. Now, ये combination reaction में क्या होता था? Can anyone tell me? Yes, the things were combining. That means reactant जो है वो combine करते थे और क्या बनाते थे? Product बनाते थे. So it was something like that. If suppose A is one of the reactant, if suppose B is one of the reactant, or if suppose C is one of the reactant. So ये सारे reactant combine करके क्या बनाएंगे? एक single product बनाएंगे. So this was what? This was the combination reaction, right? फिर दूसरा रिएक्शन जो हमने पढ़ा था वो क्या था? दैट वॉज decomposition reaction. So let me write here decomposition reaction. Now ये combination reaction और decomposition reaction में कुछ relation था क्या? Anyone? Yes, they were opposite. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में चीजें कंबाइन होके प्रोडक्ट बन रही थी, बट इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन द रिएक्टेंट इज बीइंग ब्रोकन एंड देन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था. So let's mention that also. If suppose that here is a reactant say A, so जब A break होगा तो हो सकते हैं इसमें से क्या बने? प्रोडक्ट C and D बने, right? So we have seen lots and lots of examples also, and लास्ट सेशन में हमने यही डिस्कस किया था. इफ यू हैव मिस्ड दैट सेशन, यू हैव टू डू व्हाट? यू हैव टू गो टू दी वीडियो सेक्शन एंड वहां से आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेने हैं, राइट? बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट इज बीइंग ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जाम्स. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी टुडेज सेशन. आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के सेशन में हम लोग decomposition reaction और combination reaction हो गया था, तो we are going to do with displacement and double displacement reaction. But before that, we need to know another thing, that is a reactivity series. Now when you find this reactivity series in your chapter 1 textbook, you are not going to find. It is what? It is given in the metals and non-metals chapter. So what we are going to do is that यहाँ पे हम इस reactivity series का बहुत basic information समझेंगे, because this is going to help you in the displacement reaction. Okay, now let's see what actually this reactivity series is. Now let's suppose that there are two friends. Okay, let's say this is A and let me draw another friend that is B. दोनों में फाइट हो रही है, ठीक है? दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, दोनों फाइट कर रहे हैं. Who is going to win? कौन जीतेगा? Exactly, जो ताकतवर होगा वो जीतेगा, राइट? सो इन द सेम वे जब हम रिएक्शन करवाते हैं, स्पेशली जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाते हैं, तो वो एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा जो ज्यादा ताकतवर हो, जो ज्यादा रिएक्टिव हो, राइट? सो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज बताता क्या है कि कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा ताकतवर है, राइट? सो लेट्स रीड दिस. The reactivity series of metals, they are also known as activity series, right? So reactivity series को ही हम activity series consider करते हैं. होता क्या है ये? इसमें इस सीरीज में हम लोगों ने metals को arrange किया है in the descending order of their reactivities. I hope that तुम्हें समझ में आ गया होगा कि reactivity series just एक ग्रुप ऑफ मेटल्स का रिप्रेजेंटेशन है on their basis of decreasing order of the reactivity. Clear?
अब इसको हमें कैसे यूज करना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कौन कौन से मेटल्स किस पोजीशन पे अवेलेबल है, वो सारी चीज अभी हम सीखते हैं. नाउ this is the reactivity series, and on top of the reactivity series we have a metal which is known as potassium. After that we have sodium, then we have calcium, magnesium, aluminum. फिर कौन से मेटल्स आ जाते हैं, दैट इज जिंक, आयरन, टिन, लेड, कार्बन वगैरह भी आ जाते हैं. तो लेट्स रीड दीज आउट ऑल्सो. कार्बन वी हैव, जिंक वी हैव, आयरन, टिन, लेड. लेड के बाद क्या आया, हाइड्रोजन. देन यू कैन सी दैट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, दे आर वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स. ठीक है ना. अब इसको यूज कैसे करना है, ये तो हमने सीरीज देख लिया, बट हमें सीरीज को यूज भी तो करना आना चाहिए. क्लियर? सो लेट्स चेक दिस. So for their use we have to discuss one of this reaction, that is single displacement reaction. Now the single displacement reaction is also considered as displacement reaction. अगर कहीं पे single displacement reaction ना लिखा हो और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात की गई हो, then also what we are going to see, we are going to absorb, we are going to see that ये किसका बात कर रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही बात कर रहा है. दैट मीन्स अनलेस एंड अनटिल हमें स्पेसिफिकली डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा हो, we are going to consider it as single displacement reaction only. Clear? Now सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, वर्किंग की बात करें, तो लेट अस सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस हियर. सो दिस सेज दैट सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं इन विच मोर रिएक्टिव मेटल displaces less reactive metal from a compound is called as displacement reaction. I know definition से बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगा, so for that we have to go with the examples. एक basic example लेते हैं, फिर हम reaction वाला example से we are going to understand this thing. Clear? Now, if I talk about the basic reaction, so let us write here A, B. Suppose this is a compound which is known as AB. And here we have what? We have another compound like C, D. Okay. Now let us consider that A is more reactive. In this case, metal A जो है वो क्या है? That is more reactive. It is what? It is more reactive. तो अब क्या होगा? ये जो A है वो CD से लड़ेगा, C को निकालेगा और बाहर फेंक देगा और खुद घुस जाएगा D के साथ. क्लियर? सो क्या होगा यहाँ पे? The compound which is going to be formed as AD plus C, something like this. कुछ इस तरह से compounds बनेंगे, कुछ इस तरह से products बनेंगे. This will be more clear जब हम original reactions देखते हैं. So ready for the original examples? चलो. One of the most important example of this particular category is this one. इसमें एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, सो दिस रिएक्शन शुड बी क्लियर टू एवरीवन. सो लेट अस डिस्कस. पहले यहाँ पे तो दो मेटल्स है, कौन कौन से? आयरन है, कॉपर है. कौन ज्यादा रिएक्टिव? वी डोंट नो. सो लेट मी गो विद द रिएक्टिविटी सीरीज. यहाँ पे आयरन ढूंढते हैं पहले हम लोग. कैन यू फाइंड द आयरन एवरीवन? एनीवन? Yes, obviously we have got the iron, right? So where is the iron? Let me highlight that particular iron so that everyone can visualize it, right? So this is iron. अब यहाँ पे कॉपर कहाँ है? Where is the copper? See. So कौन ज़्यादा reactive, iron या copper? Obviously iron is more reactive. Iron is यहाँ पर है, इतना ऊपर है. कॉपर तो हाइड्रोजन से भी नीचे, right? सो अब ये तो पता चल गया कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से. सो क्या होगा? आयरन कॉपर को हटाएगा या कॉपर आयरन को हटाएगा? कैन एनीवन गेस कौन किसको हटाएगा? यस, एग्जैक्टली. सो आयरन इज व्हाट? आयरन इज गोइंग टू रिमूव कॉपर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट हियर आयरन क्या है? आयरन इज मोस्ट रिएक्टिव. Or we can say when I am telling most reactive, I am
considering I am comparing it with the copper, पूरे element में नहीं, right? So let us write here most reactive with respect to copper. Now अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आयरन है, ये आयरन क्या किया, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से और खुद बैठ गया और कॉपर अकेला हो गया. क्लियर? इसी चीज को अगर मैं देखूं ये एक्चुअली में रिएक्शन कैसे हो रहा है. दे आर टू बीकर्स. एक बीकर में मैंने क्या लिया, कॉपर सल्फेट CuSO4 विच इज व्हाट, विच इज ब्लू इन कलर. कॉपर सल्फेट की कलर कैसी होती है, ब्लू. नाउ व्हाट आई हैव डन इज दैट आई हैव पुट द आयरन नेल इनसाइड दिस बीकर. जैसे ही मैंने आयरन नेल डाला रिएक्शन स्टार्ट हुआ. अब रिएक्शन स्टार्ट होने पे आयरन जो है वो कहाँ चला गया, FeSO4 के पास, सल्फेट के पास, और कॉपर जो है वो क्या हो गया, अलग होता चला गया. ना FeSO4 का कलर चेंज हुआ, दैट इज ग्रीन इन कलर, एंड आयरन के ऊपर क्या हुआ, कॉपर का थोड़ा सा डिपोजिशन हो गया. सो दिस इज व्हाट single displacement reaction means. Now let us see some more examples. We have this one, that is Zn plus CuSO4 plus gives ZnSO4 plus Cu. Now सबसे पहले इसको क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या रिएक्शन होगा भी नहीं, इसको देखने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज को देखना होगा. सो हमें कौन से टू मेटल्स को कंपेयर करना, दैट इज जिंक एंड कॉपर. सो लेट्स गो. Can you see, can you spot a zinc here? If anyone, दिख रहा है क्या zinc? Yes, see this is what, this is zinc we have, right? And copper तो यहाँ पे. So again, which is more reactive? Zinc is more reactive, right? So let's write here the metal which is more reactive here is that zinc. Zinc is more reactive than copper. So क्या होगा, जिंक कॉपर को हटा देगा और खुद जाके बैठ जाएगा, कॉपर अकेला हो जाएगा. सो सी व्हाट्स हैपनिंग, यहां से जिंक गया, इस कॉपर को हटाया और कंपाउंड क्या बन गया, ZnSO4, और कॉपर क्या हुआ, अकेला हो गया. क्लियर? सो दिस इज व्हाट, दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ लेट्स गो विद द अनदर एग्जांपल, दैट इज Pb, that is lead, and then we have CuCl2. अगेन हमें चेक करना पड़ेगा कि दोनों में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है. तो लेट्स गेट बैक विद द रिएक्टिविटी सीरीज. सो वी हैव व्हाट, वी हैव लेड. सो लेट्स फाइंड आउट लेड. वेयर इज लेड, दिस इज द लेड. एंड हमारे पास कॉपर कहाँ है, सो कॉपर हाइड्रोजन के नीचे. अगेन लेट्स सी, लेड इज मोर रिएक्टिव, राइट? सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट लेड इज मोर रिएक्टिव, तो लेड क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा एंड कॉपर को अलग कर देगा. लेड Cl2 के साथ चला गया और कॉपर अकेला हो गया. दिस इज व्हाट सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज. नाउ जस्ट फॉर एन एग्जांपल, लेट्स सी इफ सपोज रिएक्शन ऐसा नहीं, कुछ ऐसा होता, कॉपर यहां होता प्लस PbCl2 होता. सो क्या हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट बनता? Yes or no? Anyone? देखने से तो लग रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हाँ सही होगा, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है लेड से. सो कॉपर नहीं हटा सकता लेड को, राइट? सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. सो इफ सपोज इन क्वेश्चन इट इज बीइंग आस्क्ड दैट, ये रिएक्शन दे रखा है, नाउ यू हैव बीन आस्क्ड दैट whether this reaction is going to happen or not. सबसे पहले हमें क्या देखना है, रिएक्टिविटी सीरीज देखनी है. रिएक्टिविटी सीरीज में देखना कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, एंड उसके अकॉर्डिंग हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को आंसर करना है. क्लियर? ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन विद द अनदर वन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो इफ आई टॉक अबाउट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ क्या होता है? सी again let us understand this with the help of an example first, then we are going to go with the definition. So यहाँ पे again suppose we have this one, that is A plus B, and this is what, this is being reacting by CD, और यहाँ पे हमें क्या होगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा एंड प्रोडक्ट में एक्सचेंज हो जाएगा. लाइक सपोज व्हाट, सपोज दैट, लेट मी गिव अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ यू.
Suppose there are four best friends, okay? These two are one best friend और ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड, ठीक है? Now I'll give you now let's understand with this. Now let us understand this with an example. Suppose ये दोनों क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स है और ये दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स है. बट क्या हुआ ना, दोनों के बीच में फाइट हो गया. दोनों के बीच में क्या हो गया, फाइट हो गया. सो व्हाट दे हैव डिसाइडेड दैट ठीक है अब तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, मेरा बेस्ट फ्रेंड कोई और है. तो क्या हो गया, बेस्ट फ्रेंड्स के एक्सचेंज हो गए. ओके ये सपोज ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था. अब ए के साथ कौन चला गया, सी, और बी के साथ कौन चला गया, डी. क्लियर? So this is what actually happening in this case also. We can understand this with this example, right? Now, so यहाँ पे products क्या बनेंगे, यहाँ पे products कुछ ऐसे बनेंगे, AD plus BC. Clear? Now, let's read out the definition also. Definition भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, check कर लेते हैं. बल्कि आई होप दैट तुम्हें अभी समझ में आ गया होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होने क्या वाला है, राइट? बट स्टिल लेट्स गो विद द डेफिनेशन आल्सो. सो द डेफिनेशन सेज व्हाट इट सेज, दैट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द cations and anions of two different compounds switch places, forming two entirely different compounds, right? Now this definition is saying what? This definition is saying that ये क्या होगा, ये cation होगा, ये एनायन होगा, राइट? एक कंपाउंड का. अगेन दिस ये कैटायन होगा, ये एनायन होगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड का. किसमें एक्सचेंज हो रहा है, एक का कैटायन दूसरा का एनायन, एक का कैटायन दूसरा का एनायन एक्सचेंज होके कंप्लीटली नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. सो दिस इज व्हाट दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यू वांट टू सी एनी एग्जांपल्स? यस, ऑब्वियसली. लेट्स सी. वी हैव वन एग्जांपल हियर, दैट इज Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus 2NaCl. अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ना, इस एग्जाम्पल को हम बहुत अच्छे से चेक करते हैं. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सोडियम है ये इस बेरियम को रिप्लेस कर रहा है बेरियम क्लोराइड से. सो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, NaCl का फॉर्मेशन. एंड यहाँ पे बेरियम भी बोला कि ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू लीव अलोन, राइट? तुम मेरे से क्लोरीन छीन लिए हो तो मैं अकेला नहीं रहूंगा, मुझे भी SO4 चाहिए. सो बेरियम क्या करता है, सोडियम की जगह ले लेता है. सो कैन यू सी दिस, एक ने दूसरे को हटाया और दूसरे ने क्या किया, पहले वाले की जगह ले ली. सो दिस इज व्हाट दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ इन दिस रिएक्शन हमें एक और चीज का ध्यान रखना है. ये जो BaSO4 है ये क्या बनाता है, दिस फॉर्म्स अ सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस. क्या बनाता है ये, एक सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे. now this solid insoluble substance जिस रिएक्शन में फॉर्म होता है उसी रिएक्शन को तो हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं. यस और नो? सो लेट्स राइट हियर precipitation reaction. Precipitation reaction. So ये जो रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही, बट यहाँ पे हमने देखा कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है. सो इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कंसिडर किया जा सकता है. Now I hope that it's clear to everyone that double displacement और single displacement reaction में चीजें कैसे होती हैं, how the things are going to form, किस तरह से reactant जो है वो product में बदल रहा है. So in the next class what we are going to do is that we are going to go with the oxidation and reduction, redox reactions, rancidity and corrosions. ये सारी चीज हम लोग आने वाले classes में discuss करेंगे. Now what you have to do is that आपको ये सारे रिएक्शंस रिवाइज करने हैं, सारे रिएक्शंस को याद कर लेना है, प्रैक्टिस करनी है, सो दैट यू डोंट फॉरगेट दैट कौन सा रिएक्शन किसका है, क्या हो रहा है, राइट? Now in the next session what we are going to discuss about the oxidation reaction, redox reaction. We are also going to discuss about the corrosions and rancidity. I hope that our
आज के सेशन में जितने भी कंसेप्ट है आपने उसको क्रिस्टल क्लियर समझ लिया होगा। बट अब क्या करना है, कंसेप्ट समझने के बाद वी हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स। अभी जो शॉर्ट नोट्स है वो काफी हेल्प करता है हमारे एग्जाम टाइम पे। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद वी शुड प्रैक्टिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ना। यहाँ पे क्वेश्चंस का क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वेश्चंस की क्वालिटी मैटर करता है। एंड फाइनली we don't have to neglect the practical based questions, right? Chemistry is all about the practical, chemistry में बहुत सारे reactions होते हैं, तो practical based questions exams में बहुत आते हैं। So now if I talk about ये सारी चीज आप लोगों को करनी है तो बहुत टाइम लग जाएगा हर एक चैप्टर्स के लिए, because I completely understand हमारे पास बहुत सारे subjects. So to make this easy for you, what I have brought is that 3 best books for the chemistry. Yes, you heard it right. सबसे पहले अगर मैं इस बुक के बारे में बात करूं, so this book contains the summary with tips and tricks so that कि आप सारे chapters को एक concise manner में फटाफट से रिवाइज कर सको। इसमें बहुत सारे टिप्स मिलेंगे, बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे। Now next we have what? We have another book. Obviously शॉर्ट नोट्स बन गया, रिविजन हो गया, अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ना। यहाँ पे 400 क्वेश्चंस इन टोटल है एंड ये 400 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत होती है वर्ड्स में आने की। सो रादर देन डूइंग मल्टीपल क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस करने से अच्छा है कि हम कुछ क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस करें विच यू आर गोइंग टू गेट इन दिस बुक। And last one, we have a solution for practical based questions. This book contains 50 plus practice questions and साथ ही साथ में एक tabular form में सारे compounds के common names, colors, वो सारी चीज दे रखी है ना। अगर आप ये तीनों बुक्स को that is short notes पढ़ लिए, you have solved 400 questions और practical के questions भी करके गए, so I can promise you that you can score 100% in your board exams. Now, from where you have to access this book? The link will be provided in the description. You can go to So till then, bye bye everyone. Take care.